Would you advise software engineers to become data engineers? It's up to you guys. I mean, Any regrets of transitioning from SDE to data? honestly speaking, I have no regrets as such. But I want to know कि as an SDE आपने किस project पे काम किया? So as a fresher, wherever there were gaps, they used to fill me in. मजा आ रहा था काम करने में? मज़ा आ रहा था, बट थोड़े दिनों बाद ऐसा फील होने लगा था कि यार कभी भी कुछ भी दे देते हैं. तो इट वाज लाइक कि मुझे एक फील्ड में कोर एक्सपर्टीज तो गेन करनी पड़ेगी. वो जो सर्टिफिकेशंस थे एक बार उनका लिस्ट मेरे को बता दो, कौन से सर्टिफिकेशंस आपने करे थे? इन DP 200 and 201. सो ट्रांजिशन करने के बाद सैलरी हाइक कुछ मिला? After this transition into DE role, my CTC became 18. तो अभी ये सारा इंटरव्यू में रिक्वायर्ड था एंड DSA भी रिक्वायर्ड होता है. एक महीना DSA किया था, इजी क्वेश्चंस बस, एंड आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि अब मैं इंटरव्यू दे देती हूँ. ठीक है. और गूगल में तो आई वाज रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ. स्क्रीन आउट. ओके, बिकॉज ऑफ DSA. DSA is my main. द कल्प्रिट. Hi Isha, how are you? I am doing very well. How are you, Fraz? I am also doing good. So Isha, before we jump into your journey, एक छोटा सा intro हमारी audience के लिए. So hi all, I am Isha, graduated in 2019. इसके बाद I started working as a software engineer with Shell. मैंने 1.5 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, फिर उसके बाद ट्रांजिशन किया इनटू डेटा रोल एज अ डेटा इंजीनियर इन शेल. In Shell itself, right? हाँ, yeah. And then like currently I am working as a senior data engineer with Visa in Bangalore. All right. तो ये बेसिकली ट्रांजिशन की जर्नी है फ्रॉम SDE रोल टू डेटा इंजीनियरिंग रोल. बट बिफोर दैट आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू एंड ऑनेस्टली इसका आंसर करना. एनी रिग्रेट्स ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम SDE टू डेटा? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नो रिग्रेट्स एज सच, क्योंकि लाइक मुझे रियलाइज़ हो गया था इन फाइनल ईयर आई हैड एन इलेक्टिव कॉल्ड बिग डेटा. तो मुझे डेटा की एक्चुअल पावर समझ आ गई थी, और ऐसा लगता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल राइट नाउ, एंड वी हैव लॉट ऑफ डेटा विच इज़ गेटिंग जनरेटेड एंड वी कैन डू lot of stuff with that. So I have zero regrets transitioning into this role. All right. So your motivation was the salary component which you get in data field, या फिर काम पसंद नहीं आ रहा था as an SDE? क्या रीज़न था, या फिर इंटरेस्ट था डेटा में? तो रीज़न फॉर ट्रांजिशन इनटू डेटा इंजीनियर वाज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम देख रहे हैं कि डेटा आज की डेट में बहुत बढ़ रहा है, और हर कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है जिससे हम बहुत सारे पावरफुल टूल्स बना सकते हैं. तो डेटा उस टाइम पे वाज अ वेरी बूमिंग फील्ड. और मैंने मेरा एक इलेक्टिव था फाइनल ईयर में, और उसमें मैंने बिग डेटा के बारे में पढ़ा था, और मुझे पता था कि ये कितना पावरफुली यूज़ हो सकता है आगे जाके. तो समवेयर इन माई माइंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू समहाउ वर्क इन टू थिंग्स रिलेटेड टू डेटा. तो इसलिए मैंने इसके अंदर ट्रांजिशन करने का सोचा. एंड ऑब्वियसली देर इज़ अ पैकेज थिंग अटैच टू इट. बिग डेटा हैज़ अ वेरी गुड package that they're offering into more than SDE. I cannot compare like that, but it's very much like I cannot say that it is very low or very high. It is like comparable for top product companies. If you compare, it's more or like same. I hope you are enjoying the podcast. और बहुत सारी interesting बातें होना अभी बाकी हैं. But before we move ahead, I want to introduce Odin School. It is one of the best platform for aspiring data engineers, data scientists, and data analysts. Odin School is an online project-based learning and upskilling platform which has helped a lot of people to get into data field from both tech and non-tech background with their live instructor-led data science bootcamp. In this bootcamp, you learn by industry experts, as you can already see on the screen. But along with that, Odin School also provides you placement support by conducting mock interview sessions, by conducting resume building sessions, and they also have a dedicated placement portal from where students can go and apply for jobs. You can see a lot of success stories on the screen. A lot of students have been already placed and started working as data scientists, data engineers, and data analysts. You can read more success stories on their official website. So definitely go and check out the link in description. And if you're interested, you can enroll in the bootcamp. If you enroll in the bootcamp with the link given below, you will get 10,000 early bird discount. So start your career as a data scientist by checking out Odin School. Now let's continue with the podcast. Okay, इसकी बात करेंगे जब आपके ऑफर्स का डिस्कशन चलेगा तो. But I want to know कि as an SDE
आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया व्हेन यू जॉइन शेल? तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी, लाइक मैं एज अ फ्रेशर काम कर रही थी। तो एज अ फ्रेशर वेर एवर देवर गैप्स दे यूज टू फिल मी इन, तो उसमें देर वॉज बैक एंड वर्क, लाइक इन जावा आई वॉज डेवलपिंग बैक एंड, लाइक समवेयर डॉट्स एंड पीसेज में मैं एंगुलर पे भी काम कर रही थी, मैं सीक्वल पे भी काम कर रही थी, मैं डैशबोर्ड्स पे भी काम कर रही थी। तो इट वॉज मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज व्हेन यू जॉइन एज अ फ्रेशर दे डोंट like expect you to be expert in some fields, so they try you out in different fields. ऑलराइट, मज़ा आ रहा था काम करने में? मज़ा आ रहा था, बट थोड़े दिनों बाद ऐसा फील होने लगा था कि यार कभी भी कुछ भी दे देते हैं। तो इट वाज लाइक कि मुझे एक फील्ड में कोर एक्सपर्टीज तो गेन करनी पड़ेगी, मतलब आई रियलाइज दैट आफ्टर सम टाइम। आई हैड द सेम एक्सपीरियंस व्हेन आई जॉइंड कल्फिट। आई वाज गिवन अ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। वो 1 महीना काम किया, उस पर सीखे, पहले तो सीखना पड़ा 1 महीने तक, फिर काम किया, डिलीवर किया, तुरंत बैक एंड, फिर फ्रंट एंड, फिर बैक एंड, बट या इट हैपेंस। ठीक है, अब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। सो हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम SDE टू डेटा इंजीनियरिंग रोल? तो जैसे मैं अपना मतलब मुझे बिट्स एंड पीसेस में हर टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रही थी, तो मुझे लाइक आई एक्सप्रेस दिस इंटरेस्ट टू माई मैनेजर कि समडे आई वांट टू वर्क इनटू दिस डेटा थिंग, एंड लकीली देयर वाज अ रीऑर्ग गोइंग ऑन in my company Shell, and it was like they were transitioning from on-prem to cloud, and cloud was Azure. So they were looking for data engineers. अच्छा। बट उसमें क्या हो रहा था कि वो चाहते थे कि कुछ लोग जो एक्सपीरियंस है DE में, दे वर प्रेफरिंग दोज पीपल। तो आई वॉज अ फ्रेशर, ऑब्वियसली दे वुड नॉट प्रेफर मी, बट आई वॉन्टेड टू गो इन टू दैट फील्ड। आई एक्सप्रेस दिस इंटरेस्ट टू माई मैनेजर, बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशन लेवल सर्टिफिकेशंस गोइंग ऑन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विच वर इन टू एश्योर। तो मैं इंटरेस्टेड थी, आई आस्क्ड माई मैनेजर फॉर द सेम, आई डिड सम I mean that Azure certifications around fundamentals, and then there was one DP 200 and 201 which is around data engineering. Okay, ये सर्टिफिकेशन था जो आपने किया? हाँ जी। Okay, एक बार लिस्ट भी कर देना so that people know कि कौन सा सर्टिफिकेशन किसकी वैल्यू होती है। Sure. तो ये सर्टिफिकेशंस तो हो गए, बट स्टिल एक प्रोजेक्ट में जाने के लिए if there are many experienced people who already have experience in DE, you want some credibility कि लोग तुम्हें जानते हो कि हाँ तुमने कुछ किया, but as a fresher to make that image is very difficult. Correct. तो फिर आई टुक हेल्प ऑफ माई बडी एंड मैनेजर, और मैं लोगों से कन्वर्स करती थी कि क्या काम आप लोग कर रहे हो, एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि ऑफिस अपना काम के बाद, लाइक बैक एंड फ्रंट एंड के बाद, आई यूज़ टू स्पेंड सम टाइम कि मैं बिग डेटा के बारे में पढूं, और अभी जो वो लोग काम कर रहे हैं मैं उसे पीछे पीछे मतलब थोड़ा बहुत सीखती रहूँ, ताकि whenever I pitch next, they are like they are confident enough कि इसको दे सकते हैं काम। Alright, so you had to like take out some extra time for this, right? Yeah. जो SDE का काम था वो साथ साथ चल ही रहा था। Yeah. Alright. तो so कितना टाइम लगा आपको इस ट्रांजिशन में? इस ट्रांजिशन में नियरली मैंने लाइक ऑलमोस्ट 1.5 years, लाइक आई वाज वर्किंग फॉर इनिशियल 6 months आई वाज वर्किंग एज अ SD completely, then for next 1 year I was working as a SD, but I used to take out some extra hours to do some D related stuff, like I used to create dashboards on Power BI, I used to create some apps in Power Apps, which is a low code no code, again Microsoft product. Okay. So I used to help the DE team in certain ways कि ताकि मैं थोड़ी credibility build कर पाऊँ, और they have some confidence कि हाँ इसको हम अपनी टीम में ले सकते हैं वैसे, to give her some DE work. Alright, so when did you transition into that team? So after like I joined Shell in July 2019, और फिर 1.5 साल बाद मेरा मतलब I got this title data engineer. Okay. और like you can say nearly in October 2020. Alright. अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक बार वो जो सर्टिफिकेशंस थे, एक बार उनका लिस्ट मेरे को बता दो, कौन से सर्टिफिकेशंस आपने करे थे। एंड सेकंड थिंग इज कि व्हाट ऑल स्किल्स डिड यू डेवलप इन दैट 1.5 year टू मेक दैट ट्रांजिशन? स्किल्स का मतलब मेरा ये है कि SQL एंड Power BI व्हाटएवर यू डिड। हाँ। So, तो बेसिकली Azure फंडामेंटल से गेटिंग यूज टू द Azure एनवायरनमेंट। okay. देन मैंने स्काला सीखा, जावा मुझे आता था, तो मतलब स्काला सीखा, फिर दे वर यूजिंग स्पार्क, PySpark इन सम प्रोजेक्ट्स, आई लर्न दैट। आई कैन नॉट से दैट मैं एक्सपर्ट हो गई थी उतने में, बट हाँ मतलब आई वॉज नॉट वेरी न्यू टू ऑल दीज थिंग्स।
तो थोड़ा थोड़ा सबका मैं सीखती थी आफ्टर माय ऑफिस आवर्स। ओके। तो उसके अलावा एसक्यूएल तो हमेशा चलता ही है साथ में एड ऑन पैकेज। और उसके अलावा एडीएफ यूज़ करते थे, एज़्योर डेटा फैक्ट्री फॉर पाइपलाइंस एंड ऑल। वो सब लाइक आई लर्नड अबाउट इट आफ्टर ट्रांजिशन। आई वाज नॉट लाइक आई अच्छा। डिडंट फोकस ऑन दैट बिफोर माई ट्रांजिशन। तो until transition I focused only on these things. Okay. And certification? Certifications which I did was, one was Azure Fundamentals. Then you have this path for DE. There were two certification, DP 200 and 201. I guess now they are combined and they have this single certification for this. I'm not sure whether it is 203 or 202. I need to, Okay. yeah. All right. Cool. So transition करने के बाद सैलरी हाइक कुछ मिला? हाँ, तो मुझे हाइक भी मिला था उस टाइम पे। तो मैंने ज्वाइन किया था तब मेरा CTC वॉज अराउंड 10 एंड आफ्टर दिस ट्रांजिशन इनटू DE रोल माय CTC बिकेम 18 एंड उसके अलावा मेरा टाइटल ऑल्सो गॉट चेंज फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डेटा इंजीनियर और आई स्टार्टेड वर्किंग इनटू दिस डेटा माइग्रेशन टीम. All right. Great. And for how long did you work as a data engineer in Shell? So if I talk about my total experience in Shell, that is 3.5. Initial 1.5 was as a soft SDE and then remaining was in data engineering. Okay. तो ये जो 2 साल है ना एज अ डेटा इंजीनियर, इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ. What all skills did you gain after this? On what all projects did you work? और मज़ा आया या नहीं आया? And why did you transition? Sorry, why did you switch from Shell? ओके. तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा इस 2 साल की जर्नी में. जैसे हम बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा पे काम करते थे. तो डिफरेंट टीम्स थी जहाँ डिफरेंट सोर्सेस पे हम काम करते थे. तो मैंने इसमें पाइपलाइन बनाना सीखा, ADF सीखा. फिर नोटबुक्स पे जैसे हम कोड करते थे और हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस और स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन सब के बारे में काफ़ी सीखा. फिर बिग डेटा के बारे में इन डेप्थ सीखा कि मैप रिड्यूस क्या है और वो सब लाइक बिट्स एंड पीसेस में आई लर्न वेरियस थिंग्स ड्यूरिंग दिस 2-year जर्नी. पर क्या मतलब ट्रांजिशन करने का मैंने क्यों सोचा, क्योंकि 2 साल मतलब जैसे आई वॉज वर्किंग इन दिस आफ्टर 1.5 years आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि बहुत मोनोटोनस हो रहा था. जैसे मैं सेम टाइप का काम, जैसे मैं माइग्रेशन प्रोजेक्ट में थी और वही हम कर रहे थे, ऑन प्रेम से क्लाउड लेके जा रहे थे और काफ़ी मोनोटोनस हो गया था. और ऐसा हो गया था कि आप एक ही टाइप का नोटबुक लिख रहे हो. अब आपको ये भी पता है कि जो बग आएगा आपको वो भी पता है उसका रेजोल्यूशन क्या है. तो देयर वाज नो कर्व, इट गॉट फ्लैटेंड माय लर्निंग कर्व. और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रांजिशन करना पड़ेगा कहीं और. तो आई स्टार्टेड लुकिंग अप, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड ऑल. ओके. मेरे को प्रिपरेशन जर्नी आपकी जाननी है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? ओके. तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात की जो लोग इसी फील्ड में थे. तो मुझे उनसे बात करने के बाद फील हुआ कि आई वॉज नॉट इंडस्ट्री फिट राइट नाउ. और हमें सबको पता है कि हम IT में काम करें तो हमें हर टाइम इंडस्ट्री रेलेवेंट रहना पड़ेगा. वरना यू कैन नॉट प्लान फॉर योर स्विच. तो मैंने अपनी फ्रेंड से काफ़ी बात किया और मैंने देखा और मैंने रिक्वायरमेंट्स देखा, लाइक ऑल द पोस्टिंग्स ऑन लिंक्डइन. तो देयर वर रिक्वायरमेंट्स दे वर लुकिंग फॉर द कोर स्किल्स लाइक मैप रिड्यूस, स्पार्क एंड लाइक things like Scala and all. I was working on that but I was more of like working on cloud आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है जिसमें आपको बैकएंड का उतना नहीं समझ में आता है. Okay. तो सब कुछ ऑन द फ्लाई रहता है क्लाउड में. और मेजर चैलेंज दैट आई सॉ वाज देयर वाज DSA ऑल्सो. अच्छा. सो इससे पहले मैंने आज तक लीड कोड के कभी नहीं खोला था. मतलब कॉलेज में नहीं किया था? कॉलेज में मैं ऐसे मेरा रहता था कि कुछ भी कोडिंग क्वेश्चन है तो मैं अपने IDE पे कर रही हूँ, नॉर्मल सॉल्व कर रही हूँ और अच्छा. वैसे. और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज सच मैंने नहीं किया था. हैकर रैंक वगैरह मैंने ट्राई किया था प्लेसमेंट्स के टाइम पे. बेसिक. बेसिक क्वेश्चंस. तो अभी ये सारा इंटरव्यू में रिक्वायर्ड था. एंड DSA भी रिक्वायर्ड होता है? DSA भी रिक्वायर्ड होता है और ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया ही रहता है इनिशियली. आपके मतलब रिटन टेस्ट होता है और फिर कुछ फर्स्ट 1-2 राउंड्स भी होते हैं DSA के अराउंड. अच्छा, ठीक है. सो हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? तो काफ़ी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए ये सब जानना कि मैं इंडस्ट्री फिट नहीं हूँ और काम में भी मन नहीं लग रहा था ये सब सोच के कि यार एक ही तरीके का काम कर रही हूँ, नेक्स्ट कंपनी में कैसे स्विच करूँगी और वो सब.
तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप, डीएस से करना शुरू करते हैं। ओके। तो मैंने लीड कोड खोला और मैंने इजी क्वेश्चंस पे टारगेट किया और मैंने करना शुरू किया। तो 1 महीना कुछ मैंने किया, बट माय मोटिवेशन अगेन वेंट डाउन और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई लीड कोड के साथ, छोड़ दिया। एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस डिमोटिवेशन? क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे या फिर उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था कि यार एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं, मतलब ठीक है वो इंटरव्यू के लिए ठीक है, बट डेली लाइफ में हम उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इट वाज लाइक आई वाज नॉट फीलिंग मैनी लाइक द यूज़ ऑफ डूइंग डीएस। आपको लगता है कि डीएस होने नहीं चाहिए इंटरव्यू का पार्ट? ठीक है। ओके कूल। फिर डीएस छोड़ने के बाद फिर क्या किया? फिर उसके बाद फिर से अपना मैंने ऑफिस का काम करना शुरू किया, बट साइड बाय साइड ना मैं थोड़ा बिग डेटा के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं बिट्स एंड पीसेस में, मतलब अलग अलग जगह से आई यूज टू रीड अबाउट इट। थोड़े वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे, बट उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइक मेरा लर्निंग पैटर्न क्या है कि अगर मुझे एज अ टाइमलाइन सब कुछ मिले ना, तो आई ग्रैस्प इट बेटर और मैं बेटर यूज़ कर पाती हूँ। तो आई लुक्ड फॉर अ ऑनलाइन कोर्स और उसमें वट एवर थिंग्स आई लर्न नो दैट वॉज चैनलाइज एवरीथिंग। तो इट वॉज अ 20 वीक लॉन्ग कोर्स, बट इसके 7-8 वीक्स करने के बाद आई फेल्ट दैट कॉन्फिडेंस कि अब मैं इंटरव्यूज दे सकती हूँ। ठीक है। 1 महीना डीएसए किया था, इजी क्वेश्चंस बस, एंड आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि अब मैं इंटरव्यूज दे देती हूँ। ठीक है। तो मैंने लाइक आई स्टार्टेड अप्लाइंग और फिर अगेन रिजेक्शंस मैंने अप्लाई किया, मतलब पहले राउंड में बाहर हो जा रहे हैं। And what was the DSA? DSA again. ठीक है। उसके बाद आई somehow मोटिवेटेड माई सेल्फ कि नहीं यार DSA रोज करना पड़ेगा, उसके बिना इट इज़ अ लाइक द फर्स्ट स्टेप टू योर इंटरव्यू थिंग। तो फिर मैंने लाइक somehow आई kept दिस मोटिवेशन और मैंने 2 महीने लगातार DSA किया। और अपना मैंने कोर्स जो ज्वाइन किया था वो तो मैंने पढ़ा ही था, साथ साथ में और पढ़ती रहती थी स्पार्क के बारे में और जो लेटेस्ट फीचर्स आ रहे हैं उनके बारे में। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर सीक्वल थोड़ा करने लगी। तो उसके बाद ये सब मैंने कंसिस्टेंटली 2 महीने तक किया ऑफिस आवर्स के बाद। और उसके बाद मुझे अपना फर्स्ट ऑफर मिला। अच्छा, which company was that? It was DP World. The offer was from Dubai. अच्छा. Like I had to relocate to Dubai. Okay, nice. And what was the offer, CTC? So they were offering around 45. Okay, and you were at 18, right? Yeah. 18 से 45. Yeah. Pretty good transition. So finally फिर ऑफर लिया? ऑफर मैंने लिया और मेरा नोटिस पीरियड वाज 3 months. So I put down my papers and I was planning to move to Dubai. अच्छा. बट उसके बाद मेरे को क्या फील हुआ कि यार दुबई मतलब कंपनी तो ठीक है, बट इट वाज अगेन नॉन कोर। और शेल वाज आल्सो, इट वाज लाइक IT इज ओनली सपोर्ट फॉर देम, देयर मेन बिजनेस वाज ऑयल। करेक्ट। तो आई फेल लाइक DP वर्ल्ड में भी यही होगा, हम लोग बैक एंड ही रहेंगे। तो आई वांटेड टू मूव टू अ टेक फोकस्ड फर्म, लाइक टेक विच हैज फ्रंट एंड एज अ फ्रंट बिजनेस इज टेक। ओके। तो आई थॉट कि 2 महीने और बचे हैं अभी, मतलब 3 महीने का नोटिस पीरियड है, लेट मी ट्राई सम अदर कंपनीज। पेपर्स आपने उस टाइम पे डाल दिए थे। ओके, सो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था। गॉट इट। हाँ, फिर और कौन सी कंपनीज क्रैक की? उसके बाद फिर मैंने और इंटरव्यूज़ दिए, मैंने टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में अप्लाई किया, बट मैं उसमें भी अगेन आई वाज लाइक in one company I failed at system design. So in DP World, the system design that they asked was around my project. Okay. Whatever pipeline we had in Shell. So that was easy for me. Now the other hurdle that I found was system design. अब यहाँ पे एक कंपनी में सिस्टम डिज़ाइन में फेल हुई, तो मुझे लगा कि अब सिस्टम डिज़ाइन पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब एज अ डेटा इंजीनियर कुछ मतलब मैं अप्लाई करती थी, तो कुछ लाइक आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो कुछ कंपनीज वर एक्सपेक्टिंग मी टू नो सिस्टम डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लेंथ से। हाई लेवल लो लेवल। हाँ, हाई लेवल लो लेवल। और कुछ कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एज अ डेटा इंजीनियर पाइपलाइन डिज़ाइन करूँ। कितना कुछ डिमांड करती है कंपनी। तो इट वॉज अ सब कुछ आना चाहिए, DSA भी आना चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट्स भी आना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन भी आना चाहिए। तो दिस नेक्स्ट हर्डल वाज दिस सिस्टम डिज़ाइन। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, डिज़ाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस।
सिस्टम डिज़ाइंस पे ही है वो, अराउंड डेटा इंजीनियरिंग. Got it. और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे एज अ फ्रॉम द लेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोस देखी, लाइक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. Okay. आई वॉच द यूट्यूब वीडियोस. तो मैंने दोनों लेंस से कवर किया कि अब यार कुछ भी, मतलब अब बार बार एक एक हर्डल आ रही है, अब तुम कुछ भी पूछ लो, मैं दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके आती हूँ. ओके, नाइस. ठीक है. सो फाइनली फिर कौन सी कंपनी फोड़ दी? फिर मुझे नेक्स्ट ऑफर जो आया, और 1 महीने की मेहनत के बाद, अभी मेरे पास 1 महीने का नोटिस पीरियड और बचा था. Okay. तो मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस से ऑफर मिला. एंड CTC? दे वर ऑफरिंग मी अराउंड 30. ओके. 32 दे वर ऑफरिंग मी. ठीक है. फिर उसके बाद तो आई अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन ऑन वेरियस प्रोफाइल्स, एंड देन इंस्टा हायर वॉज द वन, देन नौकरी. आई यूज ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. So the other company, the next company that came was Zoomcar. Okay. There I got CTC around 36. Then there was the next offer that I got was from Expedia. It was again Bangalore based location. There I got around 42. Okay. Yeah, and finally I joined Visa. ठीक है. तो ये तो हो गए सारे offers. Rejections भी हुए थे क्या कुछ? बहुत rejections हुए थे. I have not counted, but it might be 10 plus. Okay. मतलब लगभग more than 50%. हाँ. More than twice the company in which you were selected. इनिशियली लाइक बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हुए. रिजेक्शंस के बाद तुम डीमोटिवेट फील कर दो, एक हफ्ता छोड़ दिया सब कुछ करना, फिर से मोटिवेशन गेन किया. तो मेरा काफ़ी अप एंड डाउन रहा है जर्नी. ओके, कूल. कभी गूगल माइक्रोसॉफ्ट किसी में ट्राई किया है? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. माइक्रोसॉफ्ट में भी किया है, गूगल में भी ट्राई किया है. तो माइक्रोसॉफ्ट में आई वेंट अप टिल 3rd राउंड. ओके. बट somehow got rejected after that. और गूगल में तो आई वॉज लाइक रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड itself. स्क्रीन आउट. ओके, बिकॉज ऑफ DSA. DSA is my main. Is the culprit. ठीक है, चलो. Would you advise software engineers to become data engineers? It's up to you guys. I mean, if you're motivated enough to work in this data intensive applications and like you want to explore this field of data, anyways, why not? Cool. The salaries are competitive here also. Yeah. So one more quick question. People have this concern कि यार हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम ट्रैवल करते हैं. मतलब आई टीच DSA, हमारे सिस्टम डिज़ाइन बैच भी चल रहा है. पीपल कीप कंप्लेनिंग हम होमवर्क नहीं कर पाए बिकॉज ऑफिस का काम था. हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? तो लकीली मैं जब सोचा इसके बारे में तो उस टाइम पे कोविड आ गया था. तो इट वाज वर्क फ्रॉम होम. तो आई वेंट बैक टू माय होम टाउन दिल्ली. और वहीं पे अब घर पे हो तुम तो माय वर्किंग आवर्स वर फ्रॉम 9 to 4:30. किसी दिन इट वाज लाइक कि डिप्लॉयमेंट है तो कुछ एक्सटेंड हो जाता था, बट मैक्सिमम आई यूज्ड टू वर्क टिल 4:30. कुछ शाम के कॉल्स है तो अलग से ले लिए. तो उसके बाद आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ 1.5 hour ऑफ ब्रेक. 6 बजे से लेके 8 बजे तक आई यूज्ड टू फोकस ऑन माई द बिग डेटा कोर्स, देन रीडिंग अबाउट बिग डेटा स्टफ एंड वट ऑल लाइक इन इंटरव्यूज यू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, सो यू रीड अबाउट इट. तो ऑल दोस 2 hours आई यूज्ड टू स्पेंड अराउंड दैट. देन आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अगेन अ ब्रेक ऑफ 1 hour. Then 9 to 11 I used to focus on DSA and SQL. All right, regularly. Yeah, and then once I was well versed with SQL and DSA, I was confident enough. I used to give that time to system design. Understood. For 2 months, I almost like followed the same pattern. So yeah. Awesome, great. So we are almost at the end of the podcast. But before going, can you tell us the important interview topics for data engineer? Sure. तो पहला तो अपना DSA फिल्टरिंग क्राइटेरिया. ठीक है. उसके बाद आप SQL आता है. SQL में सम कंपनीज आस्क यू बेसिक थिंग्स, बट सम प्रोडक्ट कंपनीज आस्क यू सम एडवांस things like windowing function and all those things. Okay. So second is SQL. Then third thing that comes is your concepts around big data. For big data, they might ask you the journey of Spark, how it came, then Spark optimization techniques,
Some Okay. companies might ask you about MapReduce, which was like how it got invented and all those things around MapReduce. How do you use it in your program? Ask you like code using Scala. Some data related questions might be there. Then some companies might ask you around real time streaming. So they might ask you around Kafka if you have written that in your resume. And apart from that, I guess the last thing that comes is a system design. So in system design, they heavily focus on building a pipeline, which is a data intensive application. Okay. So how would you design your application to handle such bulk data? All right. Awesome. सो बहुत ही अच्छा डिस्कशन था. थैंक्स लॉट ईशा फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस. आप लोगों को अगर ईशा से कनेक्ट करना है, सो आई प्रोवाइड हर लिंक्डइन इन डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू हर आई प्रोवाइड हर टॉप मेट ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड फॉलो हर. तो मिलते हैं फिर किसी और पॉडकास्ट में. तब तक के लिए बाय बाय. Thank you.